Hello everyone. Children, yesterday I told you to complete this activity. Find out more about any of these animals and write about it. And I hope all of you have completed this activity. Now focus on the next one. Think and write. What do you think the egret is sitting on the buffalo? Have you seen such type of picture in your surrounding? See, these egrets are going to eat insects on the skin of buffalo, cow, any cattle, camel, horse, whatever. So they are going to eat the insects, and thus they are going to feed. Mean who the birds are going to feed their own stomach, and they are going to help these cattle also. Okay, now the next. Have you seen any animal riding on another animal? Write its name. The animal which is riding. Such type of animals you have seen. One picture is given here, but you can see crow on buffalo, crow on camel, egret on cow, whatever. Whatever you have seen, you can write here. Now the next, the animal which gives the ride. Here, buffalo is giving ride to egret. Okay. And whatever you have written, as I have written here crow on buffalo. So the animal which gives the ride, so my answer will be buffalo. What you are going to write here, crow on cow. So you can write cow here. Okay. Now the next. Which animals do we use for riding? So we can use camel, horse, elephant, etc. Which animals do we use for carrying loads? We can use donkey, elephant, camel, ox, etc. for carrying the loads. Okay. Now see the next. One activity, it is completely for you. What you have to do, see, copy the drawing of the elephant given on the next page in a bigger size or on a thick sheet of paper. आपको जो एलिफेंट का ड्राइंग दिया है नेक्स्ट पेज पर कॉपी करना है एक थिक पेपर शीट पर. आफ्टर दैट मेक स्मॉल कट्स वेयर इट सेज कट. वहां पर सीजर का साइन दिया है. यहाँ से आपको इस पिक्चर को ड्रॉ किए हुए पिक्चर को प्रॉपरली कट करना है. बी केयरफुल नॉट टू कट ऑफ द पार्ट. जितना पार्ट कट करने का कहा गया है बेटा उतना ही कट करना है, एक्स्ट्रा पार्ट को नहीं करना है. ओके. फोल्ड अलोंग द डॉटेड लाइंस. इस तरह की डॉटेड लाइंस कुछ आपको दी हुई है फोल्ड करने के लिए. ओके. आफ्टर दैट फोल्ड द पार्ट विथ दिस पैटर्न. कुछ स्लैंटिंग लाइंस है, इनको आपको फोल्ड करना है. एंड पुश देम अंडर बीनेथ. और उसको थोड़ा सा अंदर की साइड में फोल्ड करना है. कट आउट द टेल एंड स्टिक इट ऑन. एंड सी ऑन द नेक्स्ट पेज. हाँ, नाउ सी. Here you have to cut. Here you have to cut. Okay. And now thus you will make a elephant. Color it, decorate it and paste it. You can paste in your book also. Okay. Now see the next one. See dear. Here are few animals. What they are telling us, what they want to say us. See, look at these pictures and read what these animals are sharing with their friends. Discuss these narratives sensitively in the class. Okay. First one, yeah, after observing the picture, you can say this is snake. Okay. The basket is the only home I have. I have forgotten what it is like in the open jungle and fresh air. For me, it is only the basket and the snake charmer. What the snake is telling,
as I am living in the basket, so it becomes my home. ये बास्केट ही मेरा होम बन गया है. मैं जंगल के फ्रेश एयर तो भूल ही गया हूँ. मुझे तो याद भी नहीं है कि मैंने कब ली थी वो फ्रेश एयर. और अब ये बास्केट ही मेरा स्नेक का चार्मर बन गया है, होल बन गया है. अब यही मेरा लाइफ है. नाउ सी द नेक्स्ट. दिस इज बियर. You see me in circus, dancing and jumping through rings of fire. You clap and enjoy. Do you think that I also enjoy all this? If I do not do this, I will get no food, only get a beating. ये बियर क्या कह रहा है बेटा? मोस्ट ऑफ टाइम आपने बियर को सर्कस में देखा होगा. ये फायर रिंग्स होती है, उसमें से जंपिंग करते हैं. और अगर हमको बहुत एंजॉय होता है, हम बहुत एंजॉय करते हैं, क्लैप करते हैं, क्लैप करते हो, एंजॉय करते हो उस मोमेंट को. बट उस चीज के लिए इन बियर को बहुत ज़्यादा ट्रबल्स को फेस करना होता है. हमारे लिए वो एंजॉयमेंट का पार्ट है, लेकिन अगर ये वो एक्टिविटीज़ नहीं करते हैं तो उनको फूड नहीं मिलता है. और इंस्टेड ऑफ फूड उनको क्या मिलता है? बीटिंग मिलता है. उनके मास्टर्स उनको मारते हैं. तो हमको एंजॉय कराने के लिए उनको कितना कुछ ट्रबल करना पड़ता है. नेक्स्ट देखो हॉर्स क्या कह रहा है. यू हैव ओनली सीन हाउ फास्ट आई रन. हैव यू सीन माई शूज? डू यू नो हाउ मच पेन आई गेट व्हेन दे फिक्स मी द हॉर्स शूज टू माई हूज. हाँ बेटा, आपने हॉर्स को बहुत फास्ट रन करते हुए देखा है, लेकिन आपको पता है क्या कि हॉर्स के फीट को ह्यूमन बीइंग्स कुछ आर्टिफिशियल शूज भी फिक्स करते हैं. टू माई हूज. हूज मीन्स फूट, बिलो द पार्ट ऑफ द फूट. वहाँ पर कुछ शूज ऐसे फिक्स किए जाते हैं और वो बहुत पेनफुल होता है. हमने हॉर्स का सिर्फ फास्ट रनिंग देखा है, लेकिन उसके पीछे उनको कितना पेन होता है ये हमको नहीं पता. नेक्स्ट. नाउ इट्स मंकीज टर्न. दे मेक अस डांस एंड डांस एंड डांस इवन इफ वी डोंट वांट टू और वी आर इन पेन. दैट टू विथ एन एम्प्टी स्टमक. हाँ, ह्यूमन वो कहते हैं कि ह्यूमन बींग्स हमसे सिर्फ डांस डांस और डांस ही करवाते हैं. दो इट्स नॉट आर विश. भले ही हम चाहे या ना चाहे वो हमसे डांस करवाते हैं. हमको भूख लगी है तो भी वो केयर नहीं करते हैं. एम्प्टी स्टमक से भी वो हमसे डांस करवाते हैं. वो ये भी नहीं सोचते हैं कि हमको कितना पेन हो रहा है. वो सिर्फ और सिर्फ अपना वर्क करवाना चाहते हैं हमसे. वो ह्यूमन बींग्स. नेक्स्ट देखो ये कैट क्या कह रही है. म्याऊ म्याऊ म्याऊ. आई कैन जस्ट रोम अराउंड एवरीवेयर. चिल्ड्रेन लव मी अ लॉट. दे पैट मी एंड ऑल्सो गिव मी मिल्क. हाँ, दिस इज अ गुड फॉर द कैट. व्हाट शी इज टेलिंग? आई कैन रोम एनीवेयर. वो कहीं भी घूम सकती है. चिल्ड्रेन लव मी. हाँ, बच्चे लव करते हैं, उसको मिल्क देते हैं ड्रिंक करने के लिए. Okay. Next. Now it's the turn of pigeon. Gudrugu, Gudrugu. Do you know people specially call out to me to feed me with grain? हाँ, most of places पर आपने देखा होगा कि people इनको pigeons को grain देते हैं खाने के लिए. उनको कॉल कर देते हैं grain खाने के लिए. Okay dear. Now see the next. Now see, discuss. You have read what these animals say. Why do you think that some of them are sad? हमने कुछ एनिमल्स के बारे में पढ़ा है ऊपर. ओके, क्यों हमें ऐसा लगता है कि उनमें से कुछ एनिमल्स सैड है? How do you think they are different? The monkeys that dance to entertain people and the monkeys that are free. ये मंकीज क्यों डिफरेंट है? जो पीपल के लिए डांस कर रहे हैं एंटरटेन करने के लिए, और जो मंकीज फ्री है. जस्ट थिंक ऑन इट. वी विल डिस्कस दिस क्वेश्चंस ऑन टुमारो.
and even this activity also we will discuss tomorrow. Okay children, bye bye, have a nice day.